ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹਿਕੜੋ, ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50। ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜ ਥਿਆ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹਿਕੜੋ, ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50। ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜ ਥਿਆ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ 125 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਵਰ ਦੇ ਅੰਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਤਲਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੇਕੜੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50। ਫਾਹੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਫਸਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 50 ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਸਾਣ ਵਾਲੇ? ਜੋ ਕਾਮਾਦਿਕ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਫਸਾਣ ਲਈ 50 ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ, ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50। ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜ ਥੀਆ। ਇਹ ਤਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜ ਥੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। हे ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਿਤ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।
वो आखते ने कि लोभ लहर अत नीझर बाझै, काया डूबे केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बिठुला। आखते ने कि हे बिठल प्रभु, इस संसार दे विच कोई एक नदी होए ते मनुख शारीरिक तौर दे उस नदी नूं समंदर नूं तर सकदा है, पर इत्थे ते विषे वासनावां दियां इतनियां नदियां ने। कदे काम दी नदी आ जांदी है, कदे क्रोध दी है, कदे लोभ दी है, कदे मोह दी, कदे हंकार दी है। इन्हां नदियां अंदर ही जीव बार बार चुबियां लैंदा है, उन्हां अंदर डुबकियां लै रहा है। लोभ लहर अत नीझर बज है, काया डूबे के सिवा। ये काया डूब रही है। संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बिठुला, क्योंकि मैं अजान जन तरबे ना जानो। दाता मैं अजान हाँ, ते संसार रूपी भवसागर तो बचन दी मैनूं जाच नहीं है। तू कृपा करके बाह दे बाप बिठुला, अपने नाम दी अपने सिमरन दी मैनू बाह दे, क्योंकि नाम सिमरन दे आसरे ही इस संसार दियां इन्हां विषय विकारां दी नदी दे विचों पार लंघिया जा सकदा है। जो बाबा फरीद साहब ने रहमत की कि सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50, 50 ही ऐसे विषय विकार ने जो जीव नूं फसान लई डुबान लई तैयार बैठे हुए ने। ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜਥੀਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਤ ਸਰ ਵਰੜੈ ਭੇਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, कि हे दाता ये जगत संसार जिहड़ा है ना बड़ा भयानक सरवर है, बड़ा भयानक सरोवर है ये जगत। तित सरवड़ है भेले निवासा, ते असां जीवां दा वासा भी उस संसार रूपी भयानक सरोवर दे विच है, जगत दे विच है। तित सरवड़ है भेले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, ते मालिक ने पानी दी थां दे उपर पावक अग पैदा की हुई है। ते किहड़ी अग है? वो है विषय वासनावां दी, वो है तृष्णा दी अग। पानी दी जगह वो विषय वासनावां दी। ते पातशाह आखदे ने कि तृष्णा दी अग दे अंदर जीव रोज ही सड़ रहा है। पानी पावक तिन्ह किया। अगे आखते हैं कि पंकज मोह, मोह दा पंकज है, मोह दा चिकड़ भी है। पग नहीं चालै जिथे साडा पैर नहीं चलता, चिकड़ दे जिवें ही पैर रखते हाँ तो मोह दे चिकड़ दे अंदर साडा पैर तिलक जाता है। मोह दे अंदर बधा होया जीव उस मोह दे चिकड़ दे अंदर तिलकी जा रहा है, डिगी जा रहा है। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह आखदे ने हम देखा, मैं देखिया है, बेअंत ही जीव इस मोह दे चिकड़ देवे तृष्णा दी अग दे अंदर डुबी जा रहे हैं। सतगुर महाराज आखते ने कि तित सर वरड़ै भेले निवासा, पानी पावक तिने किया, पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा, तां डूबी ले। साडे देखदियां होइयां ही मोह दे चिकड़ दे अंदर जीव डुब रहे ने। तृष्णा दी अगन दे अंदर, विकारां दी अगन दे अंदर जीव जिहड़े ने वो डुबी जा रहे ने। सो सतगुर महाराज ने इत्थे रहमत की। गुरु पातशाह आखदे ने कि सरवर पंखी हेकड़ो, इस संसार रूपी जगत दे विच जीव रूपी पक्षी अकेला ही है, कला ही सफर करना है उसने। फाही वाल 50, 50 ही नूं फसान दे चक्कर दे पे हुए ने। ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜ ਥੀਆ, ਇਹ ਤਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਿਤ ਹੀ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਦਾਤਾ, ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਸੀ।
इन्हां जीवां दा जीवन तबाह हो गया, इन्हां दे जीवन दा अंत हो गया। हुण फाही वाल 50 ही ऐसे विषय विकार ने। ते भगत रविदास जी आखदे ने पंजां जियां दे अंदर एक एक अवगुण सी ते उन्हां दा जीवन फना हो गया। मनुख तेरे अंदर ते 5 ने, तेरे अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह हंकार भी है। रविदास जी आखदे ने मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर। मृग तो भाव होंदा है हिरण, मीन तो भाव होंदा है मच्छी, भृंग तो भाव भवरा, पतंग तो भाव पतंगा, कुंचर तो भाव है हाथी। एक दोख विनाश, इन्हां दे जीवन अंदर केवल एको ही ऐब है, एको ही दोख है। इन्हां दा जीवन नाश हो गया। पंच दोख असाध जामै, ए इंसान तेरे अंदर ते 5 दोख ने, ताकि केतक आस, फिर इसकी कितनी उम्मीद की जा सकती है। रविदास ने इन्हां 5 जीवां का जिक्र किया। आखन लगे मृग दे अंदर, हिरण दे अंदर एको अवगुण है। जंगल दे अंदर बड़ा खूबसूरत जानवर है, बड़ी रफ्तार भी तेज है, पर इहदे अंदर एक कन रस का जिहड़ा अवगुण है। जदों घंटे हेड़े शब्द वजाया जाता है, शिकारी जदों पकड़ते ने हिरण नूं, एक मिट्टी के भांडे के मूँह नूं बन देना चमड़े के नाल, ते मोर पंख के नाल छोटा छेद करके जो मोर पंख नूं अंदर और बाहर करते हैं, एक नाद पैदा होता है, एक स्वर पैदा होता है। उस स्वर नूं, उस नाद नूं सुन के हिरण आपे तो बाहर होके उस रस वल खिंचिया आंदा है, कन्ना दी सरोए वल खिंचिया आंदा है। जिवें शिकारी दे नेड़े आया, शिकारी दे जीवन का अंत कर दिता। इस हिरण दे जीवन का अंत हो गया। केवल एको अवगुण सी हिरण दे अंदर, कन्ना दे रस करके आया, जीवन का अंत हो गया। रविदास जी आखदे ने कि मृग, मीन मच्छी पानी दे च रहिंदी है, सारी जिंदगी पानी विच बतीत कर दिती, पर मांस इंज कह लवां कि जबान दे रस दे करके मांस का टुकड़ा खाण आई। शिकारी ने कंडे दे नाल छोटा जा मांस का टुकड़ा आया, जबान का रस लैण वास्ते मांस खाण आई, पकड़ी गई, किसी होर दी जबान का रस बन के रह गई। एको अवगुण सी मच्छी दे अंदर, जबान का रस लैण आई, जीवन का अंत हो गया। भृंग तो भावदा भवरा, भवरा आके सुगंधी लैण आया, सुगंधी लैण वास्ते फुल दे उपर, कमल फुल दे उपर आके बैठिया। कदों संध्या वेले सूरज छुपिया, कमल फुल ने अपनिया पंखड़ियां बंद कर लिया, अंदर ही जीवन का अंत हो गया। सुगंधी का रस लैण आया, गंध के रस च आया, जीवन का अंत हो गया। अगला है पतंगा। पतंगा जिहड़ा है वो लाइट के उपर आंदा है, रोशनी के उपर आंदा है, अखां दे रस करके आया, ते आके पतंगे ने अपना आप उस लाइट के उपर वार दिता। रोशनी ने साड़ के जीवन सुआह करता, केवल एक अखां दा रस सी। अखीर दे विच भगत रविदास जी आखदे ने कि कुंचर तो भाव है हाथी। हाथी बड़ा शक्तिशाली जानवर है, बड़ी ताकत है उसदे कोल, पर एको अवगुण है उहदे अंदर काम दा। जदों भी महावत आदिक जो ने हाथी नूं पकड़ते ने, एक कागज की हथण तैयार करते ने, ते बहुत वड्डा खड्डा खोद के छोटियां जिहियां लकड़ियां उत्थे पा देणियां, ते वो नकली कागज की तैयार की हथण नूं सामने खड़िया कर देंदे ने। हाथी काम वासना दे दौड़दा होया आया, खड्डे दे विच डिग पिया। कई दिन उन्होंने भुखिया रखा जाता है, उस खड्डे दे विच रखिया जाता है। जदों बड़ा निर्बल हो गया, बड़ा कमजोर हो जाता है, फिर सारा जीवन महावत की गुलामी करता है, सारा जीवन गुलामी की जिंदगी बतीत करता है। एको अवगुण सी। भगत रविदास जी आखते हैं कि मृग, मेन, भृंग, पतंग, कुंचर एक दोख विनाश,
पंच दोख असाध जामै ताकि केतक आस। जिन्हें अंदर पंच दोख ने इंसान के अंदर, उसकी कितनी कुछ उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि भगत अज फरीद जी आखते ने कि सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50, 50 ही नूं फसाण वाले ने। ते इस तन जड़ा है लहरां दे अंदर विकारां अंदर डुब रहा है। सच्चे तेरी आस दाता, मैनूं केवल तेरी ही आस है। गुरदेव पातशाह आखदे ने उन्हां पंजां जियां दा ते जीवन दा अंत हो गया, पर जे तू मालिक दे चरनां दे नाल जुड़ जाए ते तू इन्हां पंजां तो बच सकदा है। मिर्ग दे जीवन दा अंत होया कन्नां दे रस करके। गुरदेव आखदे कि तू भी दुनियावी कन्नां दे रस दे विच निंदिया चुगली दे विच लगा होए, इन्हां कन्नां दे नाल मालिक दी सिफत सलाह करे, तेरा जीवन अमृतमय हो जाएगा। कि ए सरवणो मेरियो साचै सुनै नो पठाए, साचै सुनै नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। मालिक दी सच्ची बाणी नाल सांझ पा, तेरा जीवन अमृत वर्गा हो जाएगा। मीन दे जीवन का अंत होया जबान दे रस करके। सतगुरु महाराज आखते हैं कि जबान का रस करके मीन का मच्छी के जीवन का अंत होया। इंसान की रसना भी दुनियावी पदार्थों के विचों कदे तृप्त नहीं होती कि यह रसना तू अनसराचरी तेरी प्यास न जाए। पर जे इस रसना के नाल परिपूर्ण परमेश्वर के वाहिगुरु के गुण गा लें कि रसना गुण गोपाल निध गायन, शांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन, जो मांगै सोई सोई पावै, सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहू ते छूटै, भौजल जगत तरायण। ते अखीर दे गुरु पातशाह आखदे ने कि अविनाशी खेम चाहे जे नानक, ना कदे मुकण वाला सुख चाहंदा है, ते एक काम कर सदा सिमर नारायण। सदा ही उस मालिक नूं सिमर। रसना दे नाल मच्छी दे जीवन का अंत होया, पर रसना दे नाल तू मालिक दे गुण गा ले, तेरे जीवन अंदर आनंद पैदा हो जाएगा। प्रिंग तू भावदा भवरा, पतंगा भवरा खुशबू लैण वास्ते आया, इंज कह लवां सुगंधी नक की गंध लैण आया, तो जीवन का अंत हो गया। गुरु पातशाह आखते हैं कि रब ने तेरे पर बड़े परोपकार किए ने। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे। सुंदर सेजा के उपर जीव विश्राम करता है। अनेका सुख ने रस भोगण पूरे, सारे रस भोगता है। ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। ग्रह सोयन भाव के सोने का सोहना घर होए। ग्रह सोयन चंदन सुगंध, चंदन की सुगंधी तेरे कोल मौजूद होए। दुनिया के सारे सुख मौजूद होण। लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख माणदा, किछ नाहे विसोरे, सो प्रभ चित न आवे विष्टा के गिरे। बिन हर नाम न शांत होए, कित बिद मन धीरे। बिना हरि के नाम तो बिना शांति नहीं। इसलिए मालिक के नाम के नाल जुड़, परमात्मा की बंदगी के नाल जुड़। पतंगा लाइट के उपर आया, अखां का एक अवगुण सी, इंज कह लवा कि अखां करके दुनिया का रस लैन आया, पतंगे के जीवन का अंत हो गया। महाराज आखते हैं कि इन्हां अखां दे नाल सृष्टि अंदर वसते हुए निरंकार महाप्री के दर्शन कर। जो मालिक कणके कणके अंदर वसिया हुआ है, इन्हां कन्ना करके तेरे जीवन अंदर विकार ना पैदा होण। इन्हां अखां दे करके तेरे जीवन अंदर अवगुण ना पैदा होण। भाई साहब भाई गुरदास जी के बचन ने, वो आखते हैं कि देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने। कि पराए तन नूं देख के तेरे जीवन अंदर मलीनता ना आए। अपने तो वड्डी होए ते मां नजर आए, बराबर दी होए भैण नजर आए, छोटी है ते धी नजर आए। फिर इन्हां अखां दे नाल संसार नूं देखेगा, संसार दे तैनूं रब नजर आएगा। तेरे जीवन अंदर मलीनता नहीं आएगी। सतगुरु महाराज अखी दे आखदे कि कुंचर हाथी दे जीवन का अंत होया, उदा जीवन गुलामी दे विच आया। क्योंकि काम वासना के अंदर ते गुरु पातशाह ने सहस्कृति बाणी अंदर रहमत की है कि हे कामंग विश्रामंग महाजोनी परमावणे। ये जोनिया दे परमान वाला है। इसलिए गुरु पातशाह ने सिख नूं ग्रस्त बख्शिश किया है।
गुरु नानक सच्चे पातशाह तो कलगीधर पातशाह तक 10 गुरु साहिबानां दे विचों केवल धन गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज जिहड़े ने उन्हां दी उम्र छोटी है नहीं ते 9 गुरु साहिबान सारे गृहस्थी होए ने। भाई गुरदास जी बाणी अंदर कहते ने कि सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है, सारे धर्मां दे चों गृहस्थ प्रधान है। ते गृहस्थ केवल विकार भोगण वास्ते नहीं है, गृहस्थ दे अंदर रह के तू संसार दे चों निर्लेप होना है, परिवार दे जिम्मेवारियां निभांदियां होइयां निरंकार दे नाल किवें जुड़ना है। देखो जदों एक बंदा जीव जिंदगी बतीत करदा है ना ते वो गुरसिख है। जदों आनंद कारज हुंदा है ते कहंदे ने कि अज तों तुहाडी संगत बन गई है, क्योंकि पति पत्नी करके वो संगत बन जाती है। ते जिस दे दिन घर दे विच औलाद आ जाए वो फिर परिवार जिहड़ा है पूरा सत्संगत का रूप धारण कर लैंदा है। सो गुरु पातशाह ने सिख नूं वो जीवन बख्शिश किया। गुरु पातशाह इस पावन बाणी अंदर आखते हैं कि फाही वाल 50 ही विकार जिहड़े ने वो जीवन नूं गिराण वाले ने, ते जिंद इकल्ली है। रब्बी बाणी का बचन है, महाराज आखते हैं कि हंस हेत लोभ क्रोध चारे नदियां अग, केवल बाहर दियां नदियां ही नहीं, गुरु पातशाह आखते हैं कि शरीर के अंदर भी 4 तरह दियां अग्गां जड़ियां ने वो मौजूद ने। हंस तो पाउंदा हिंसा करनी, किसी का दिल दुखाना, ते दिल दुखाण भावें वो बचना दे नाल दुखाया जाए, भावें वो कलम दे नाल दुखाया जाए। बड़े ढंग ने, किसी नूं मार के हत्थां पैरां दे नाल ही नहीं, होर बड़े तरीकिਆਂ दे नाल हिंसा की जा सकती है। हंस हेत, हेत तो भाव है मोह, लोभ, लोभ और क्रोध, क्रोध तो भाव है क्रोध करना। गुरु नानक सच्चे पातशाह हरिद्वार की धरती पर जदों गए ना, मरदाना जी ने कहा कि मरदानिया जाके अग लैके आ, सी कुछ लकड़ बाल के लंगर तैयार करिए। कई बारी आप नाल साखी सांझी की है, संखेप जी अर्ज करा। जो वैष्णो साध है, मरदाना जी अग लैन गए तो मरदाना जी का पछावा उसके चूल्हे पर पै गया। वो वैष्णो साध बलदी हुई लगदी अग की लकड़ लैके मरदाना जी के पिछे, मरदाना जी गुरु नानक सच्चे पातशाह चरणों में पहुंचे, महाराज मैनू बचा लियो इस वैष्णो साध कोलों। महाराज ने कहा कि साध जी असी तो अग भेजन लैन भेजिया सी, तुसी आप क्यों लैके आ गए? आखन लगे मैं अग लैके नहीं, इस मरदाने नूं साड़न वास्ते आया, इस डोम नूं साड़न वास्ते आया, क्योंकि नीवीं जात दा है। ते नीवीं जात ने मेरा चौका सवेरे दा लिंबिया होया सारा कीता कर्म मेरा भ्रष्ट कर दिता है इसने। मैं सवेरे उठिया जाके गोबर इकट्ठा किया, चौका लिमिया, कारा कढ़ियां, लकड़ा धोतियां, लकड़ा सुकाइया, उहदे नाल लंगर तैयार कर लगा, मेरा सारे का सारा चौका इन्हें भ्रष्ट कर दिता। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उत्थे शब्द उच्चारण किया, मेरे दाता जी ने आखन लगे कि कुबुद डोबणी, तुसी कहते हो कि 4 जातां नीवियां ने, इन्हां दे परछावें दे नाल जीवन भ्रष्टिया जाता है, सारे काम भ्रष्टे जाते ने। इस तो भाव है कि तुहाडे धर्म कर्म तो ते ये उच्चे हो गए, क्योंकि इन्हां दे धर्म कर्म तो वध इन्हां दे परछावें दे नाल जे तुहाडा धर्म कर्म नाश हो जाता है, तो इहदा भाव है कि इन्हां दा परछावा तुहाडे धर्म तो उच्चा है। महाराज ने रहमत की, आखना कि कुबुद डोमणी भैड़ी मत तुहाडे अंदर डूम की तरह है। कुदया कसायण, लोकां उपर दया ना करनी, वो कुदया कसायण के रूप दे विच अंदर मौजूद बैठी है। कुबुद डोमणी कुदया कसायण पर निंदा घट चूड़ी, ते गुरुदेव आखते ने कि निंदिया करनी वो चूड़ी अंदर बैठी है। मुट्ठी क्रोध चंडाल, ते चंडाल के रूप दे विच तू ठगे जा रहे हो। कारी कड्डी क्या थी है, या चारे बैठियां नाल बाहर दियां कारां दे नाल की लाभ है जो चारे तुहाडे नाल बैठियां हुईयां ने। गुरु पातशाह का समझाने का जो ढंग सी, आखन लगे ये कामादिक वैरी जड़े ने
ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਹੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਮਰ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਜਾਏ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਨੇ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਹੀਵਾਲ 50 ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜ ਥੀਆ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰੈ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਦਾਤਾ ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨੇਕ ਬੋ ਭਾਂਤੀ, ਛੋੜੈ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ ਏਕ ਬਾਤ। ਸੁਣਤਾ ਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨੇਕ ਬੋ ਭਾਂਤੀ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ, ਛੋੜੈ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਓਟਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਓਟ ਲੈ। ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਓਟਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਏ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਿਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ ਸੰਤੀ ਮੰਤ, ਦਿਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੀਤ ਲਈਏ ਓਏ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਦਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਈ, ਜੀਤ ਲਈਏ ਓਏ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ। ਸਹਿ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ। ਸੁਧਾ ਰਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਤਹਿ ਮਿਲਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨੋ। ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਸਵੈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ।
उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। बड़ा थोड़ा खाना, बड़ा थोड़ा सोना। किसी के घर प्रेमी ने बुलाया उन्होंने, 36 प्रकार के भोजन तैयार किए। उन्होंने उन्होंने विचों एक प्रसादा लिया, थोड़ा जिहा उपर साग रखा, हाथ के उपर रख के खान लग पे। अरदास करके जदों हटे, परिवार ने आख्या कि तुसी इतने पकवान बनाए ने, असी घर दे विच तुसी केवल एको प्रसादा लिया और एको थोड़ा जिहा साग उहदे उपर पा के तुसी रोटी खा लई। इतने पकवान बनाए ने, सारे खा लैंदे थोड़े थोड़े। वो बार बार ये गल क्या करते सन, कहने कि जे किसी राज नूं जितना होए ना, ते सियाणे राजे की करते ने, जे उस राज दे किले भी मजबूत होण, दरवाजे भी मजबूत होण, ते फिर उसनूं जितन लई जे राज महल तक पहुंच भी जाए राजा, फिर बाहर तो पानी का कनैक्शन और खास करके लंगर जाण का प्रबंध जिहड़ा है वो बंद कर दिता जाता सी। आपनों ज्ञात होएगा, कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहब की धरती पर विराजमान ने, ते बाहर तो राशन का प्रबंध भी कर दिता गया सी, ते पानी का जो कनैक्शन सी वो भी नहीं सी जाता। गुरु कलगीधर पातशाह गुरु के सिखा ने तकरीबन 7-8 महीने जिहड़े ने उस आनंदपुर साहब के किले के अंदर बतीत किए ने। वो सेवा पंथी सेवा राम जी कहन लगे, फिर जदों कुछ दिनों बाद उन्होंने खाण का प्रबंध खत्म हो जाए ना, फिर आपे वो बाहर आ जाते ने। कहने कि इसे तरह ये शरीर रूपी किला है, शरीर रूपी किले के जितने मर्जी नूं पदार्थ दिते जाण, अंदरों विकार इन्हूं लुटते रहते ने, पर इन्हूं थोड़ी ही खुराक दी जाए, थोड़ा ही सया सोया जाए, फिर अंदर के जो विकार ने ये जीवन उपर प्रभाव नहीं पाते। तो देखो एक गल करके मैं समाप्ति करा। धार्मिक स्थान मुबारक ने, जिथे जाके मालिक की सिफत सलाह की जाती है, प्रभु का नाम जपिया जाता है, जिथे मालिक की बाणी पढ़ी जाए, जिस घर के अंदर, जिस गुरु धाम के अंदर, जिस धार्मिक स्थान के उपर वो पूजन योग है। और खास करके उन्होंने थावां दे बाहर ये लिखा जाता है कि कोई भी नशा आदिक जड़ा है इस स्थान के उपर लियाना मना है, क्योंकि असीं सोचते हाँ कि इस थान के उपर नशा आदिक नहीं आना चाहिए। चंगी गल है, नहीं आना चाहिए। दूसरी गल कि असीं सोचते हाँ कि उस थान के उपर जाके कोई ऐसे बोल भी ना बोले जान जो माड़े होण। मनुख भावें बाहर जितना मर्जी बोले, पर सोचता है कि गुरु घर दे जाके, धार्मिक स्थान दे जाके कोई माड़े बोल ना बोले जान। पर गुरु पातशाह आखते ने कि केवल बाहर दे हरमंदर नूं ही देख रहे हैं, अपने हिरदे रूपी हरमंदर नूं देख। जदों ये शरीर तेरा हरि का मंदिर बन गया, फिर इस शरीर रूपी इस हरि के मंदिर दे विच बाहर तो नशे नहीं आणगे। फिर इस जबान तो भी कदे किसी नूं कबोल बोल माड़े नहीं बोले जाणगे, क्योंकि बाणी आखदी है कि यह शरीर हरमंदर है, ये शरीर ही हरि का मंदिर बन जाएगा। सो बाबा फरीद साहब ने रहमत की कि सरवर पंखी हेकड़ो फाहीवाल 50 ही फाहीवाल ने, ए तन लहरी गढ़ थिया, ये शरीर रूपी लहरां दे विच विकारां दी लहरां दे अंदर ही डिगदा जा रहा है। सच्चे तेरी आस दाता केवल